Bismillahirrahmanirrahim. Today, I would like to discuss about the molecular orbital theory (MOT). देखिए जी, we have discussed different theories about the bonding situation in coordination complexes. The first one was Werner theory, and second one is VBT, that is valence bond theory. You have seen the Werner theories fails in certain aspects because no valence electron involved in bond formation, and Werner theory can't explain the geometry or color of the complexes or magnetic properties of the complexes. While VBT also fails in certain aspects, they have the valence electrons are involved in bonding formation in VBT, and VBT also have explained the color of the complexes, but fails to explain the color of the complexes for certain coordination complexes. And similarly, VBT also fails to describe the para and diamagnetic behavior for some of the coordination complexes. Now we would like to discuss about the molecular orbital theory. So first of all, what are the main assumptions of the uh, molecular orbital theory? So the main assumptions of the molecular orbital theories are the main assumptions of MOTR कि जैसा कि हम समझते हैं we have atomic orbitals. देखें, when we are going to undergo the electronic configurations, so we have different atomic orbitals and we put electrons in them in order to fill the different orbits and R orbitals. So the elements have atomic orbitals, and according to MOT, these atomic orbitals may be combined together to produce molecular orbitals. So elements के पास atomic orbitals होते हैं, जबकि compounds के पास molecular या molecules के पास molecular orbitals होते हैं. और आमतौर पे हम समझते हैं कि molecules या compounds चूंकि एटमों की आपस की combination से बने हैं, तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि बालफाज दीगर अगर हम ये कहें कि molecules are formed by the combination of different atoms together to form molecules. So in terms of that, we also can describe that molecules can be obtained. Yeah, molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals. So molecular orbitals का पहला assumption ये है कि molecular orbitals बनते हैं atomic orbitals की आपस की combination से. और एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वी विल गेट थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. हमारे यहाँ तीन किस्म के वी विल बी एबल टू ऑब्टेन थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स by the combination of atomic orbitals. The one is said to be as bonding molecular orbital BMO, and the other one is anti-bonding molecular orbital, and the third one is non-bonding molecular orbital. And the formation of these three kinds of molecular orbital depend upon the energy of the molecular orbitals and depend upon comparing the energy of the molecular orbitals with that of their atomic orbitals. तो अगर हमारे पास atomic orbitals की energy molecular orbitals की energy से ज्यादा हो, यानी कि molecular orbital की energy कम हो और इनके बनाने वाले atomic orbital की energy ज्यादा हो, तो such kinds of molecular orbital are said to be as bonding molecular orbitals. और अगर हमारे पास atomic orbitals की energy molecular orbital की energy से
कम हो, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो, तो जो such kinds of molecular orbitals are said to be as anti-bonding molecular orbitals. और in the same sense अगर एनर्जी सेम हो तो फिर इस सूरत में ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएगा. Okay, like this. Okay जी, okay. Let me check. Okay, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ. Let's suppose I have. Okay, let me annotate this. अच्छा, अच्छा. ओके, इसको एनोटेट करने के बाद आप देखें, इफ आई हैव दिस सिचुएशन. ओके, अब अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक यहाँ से कहाँ से जी, जी प्लीज. आई नीड अ पेंसिल. ओके, ओके, सिंपल इज दैट. देखें, ओके, ये सारे मेरे पास क्या है, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. दिस वन Eg to T2G, और इस तरह ये A1G और T1U, ये सारे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और ये भी सारे एटॉमिक. और ये मेरे पास ये हैं या ये दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अब इनकी एनर्जी अगर हम ड्रॉ करें, सो दिस विल हैव एन एनर्जी. इसकी जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द, अच्छा, इनकी जो एनर्जी है वो बराबर होगी. देखें, इसकी एनर्जी ज़्यादा और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये और एक ये, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ की एनर्जी से ज़्यादा है. तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा, और ये मेरे पास T1U और इस तरह A1G T1U 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Eg बनते हैं. इनकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम है. सो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये भी सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि इस साइड वाले सारे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल. अब इनकी एनर्जी कम है इन एटॉमिक ऑर्बिटल से. सो ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे. ये सारे क्या कहलाएंगे, बॉन्डिंग. और इसी तरह ये जो मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये तीन, ये Eg स्टार, A1G स्टार, T1U स्टार, अगर हम कंपेयर करें इनकी एनर्जी से, तो इनकी Eg की एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा है, और A1G की एनर्जी, A1G स्टार की एनर्जी जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, A1G जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा. और इसी तरह T1U की एनर्जी कम है, T1U स्टार जो कि मॉलिक्यूलर है. सो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनकी बनाने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम है. तो ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे. लेकिन अगर ये मेरे पास T2G एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के इक्विवेलेंट है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे. सो ये है assumptions इनके.
और इसी तरह से आई वुड लाइक टू गो बैक टू, ओके, आई वुड लाइक टू गो बैक टू, अच्छा, ओके, सो ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बल्कि थ्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते, किस किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे? जिसकी एनर्जी सेम हो, जिसकी सिमेट्री सेम हो, तो सच काइंड्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल कंबाइन टू प्रोड्यूस थ्री मॉलिक्यूलर orbitals: bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital, and non-bonding molecular orbital. And this depend upon the this depend upon and comparing their energy with the atomic orbitals. So ये बिल्कुल second number assumption में लिखा हुआ है clearly, the molecular orbitals formed by the addition of atomic orbitals having lower energy than their corresponding atomic orbitals is called the bonding molecular orbital. वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी उनके बनाने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम हो, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। लेकिन जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो इनके बनाने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो सच काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सेड टू बी एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ। ठीक है, सो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल उनके बनाने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनके बनाने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट हो, तो सच काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सेड टू बी एज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। So next assumption is the electron filling in is accordance with the Pauli exclusion principle at the principle and Horn's rule. बिल्कुल जब भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिल अप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग अप करते हैं, so we will have to follow the Pauli exclusion principle. We have to follow the electronic configuration for above principle and Horn's rules, जो कि हम बिल्कुल बेहतर समझ सकते हैं कि no two electron can have all the four equivalent quantum number। एक प्रिंसिपल ये है, और अब वो प्रिंसिपल ये है कि the filling up of orbitals will occur on the basis of their energy increasing order of energy। जो पहले वो ऑर्बिटल फिल्ड होगा जिसकी एनर्जी कम हो, और इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फिलिंग अप की बुनियाद पे फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल होगी। ये कहलाता है अब प्रिंसिपल्स। और होर्न रूल ये है, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर। दो इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर के जो जितने सारे क्वांटम नंबर है वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि when we are going to filling up of the orbitals having degeneracy having this same energy, तो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप होगी और फिर आगे जो है पेयर अप होगी। तो ये कहलाता है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो जब भी हम करते हैं, जब भी हम फिलिंग अप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करते हैं, वी हैव टू फॉलो द पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वी हैव टू फॉलो द अफबो प्रिंसिपल, एंड वी हैव टू फॉलो हॉर्न्स रूल्स। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम फिलिप अप ऑर्बिटल्स करेंगे, तो हमारे पास जो है फिर हम बता सकते हैं कि मेरे पास जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर है कि नहीं है। और इसी तरह हम बता सकते हैं कि कितने बॉन्ड्स एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कितने बॉन्ड्स पोजेस करेगी, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। मीन कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इन सब को हम बता सकते हैं वंस वी ड्रा ए MOT diagram. So when we are going to draw MOT diagram, we have to keep in mind the Pauli exclusion principle, we have to keep in mind the Afbo principle, and we have to keep in mind the Horn's rules. So after following these rules to fill up the orbitals, we will be able to draw the MOT diagram. And after drawing the MOT diagram, then we can say about the structure of our molecules. The number of unpaired electrons in the anti-bonding orbitals shows paramagnetic behavior। बिल्कुल इसका एक ये भी है कि अगर एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर नॉन बॉन्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो
वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. सच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. लेकिन अगर unpaired electrons not found in the anti-bonding molecular orbital, then such substances or such coordination compounds will show diamagnetic behavior. तो उसमें एक ये भी है. तो इससे जाहिर है, ये साबित होता है कि MOT जो है molecular orbital theory can describe the paramagnetic or diamagnetic behavior of the coordination complexes. And since the bond orders क्या है, how to find bond orders through MOT diagrams, तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं number of electrons in the bonding molecular orbitals minus number of electrons in the anti-bonding molecular orbitals divided by 2, or it can also be bond order. Bond order क्या है? Bond order actually shows the coordination numbers. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ, यानी लीगेंड कितने लीगेंड्स अटैच हो सकते हैं. इस बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फॉलो द फार्मूला, और इट मे बी डिफाइंड as 1/2 the difference between the number of electrons present in the bonding and the number of electrons present in the anti-bonding orbitals. ठीक है. So इसी तरह से we will be able to find out the bond order. bond order से मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या. तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए चाहिए बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला, और बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हम इसी तरह अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ MOT और MOT डायग्राम. ये नजर आ रहे हैं. जब भी कोई भी जब हम MOT डायग्राम को ड्रा करते हैं तो एक साइड पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पुट अप करते हैं, दूसरे साइड पे हम लीगन इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं. सो ये मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है लीगन इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. सो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरे पास 6 लीगन्स है, और ये आप देख सकते हैं 6 लीगन इलेक्ट्रॉन्स, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर द 6 लीगन्स एंड ईच लीगन कंट्रीब्यूट 1 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो एक साइड पे लीगन्स इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं जिसको 1G1U से जाहिर किया जाता है, और दूसरी साइड पे सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन. आपने देखा होगा जिस तरह की लाइक कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो उसमें 3D के अंदर और 4s और के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि 4p जो है ये एम्प्टी होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता. अलबत्ता 4s के अंदर और 3D के अंदर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं. सो जब हम तो यहाँ पे जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे सेंट्रल मेटल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको शो किया जाता है. सो ये हमारे पास 3D है. 3D के अंदर ये चूंकि इसको दो में डिवाइड करते हैं, EG एंड T2G. डीजेनरेट दो तरह के डीजेनरेट ऑर्बिट, EG एंड T2G एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो EG एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 होते हैं और T2G एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 होते हैं. ये 3 T2G ऑर्बिटल, और ये जिसको कहते हैं डबली डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ट्रिपली डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल. और इस ऑर्बिटल जो है जिसको 4s है इन केस ऑफ कोबाल्ट 4s, ये इस ऑर्बिटल A1G से जाहिर किया जाता है. और इसी तरह p ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनको आमतौर पे T1U से, क्योंकि ये भी ट्रिपली डीजेनरेट होते हैं, सो ये T1U से जाहिर किया जाता है, और इसके अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. अब देखना ये कि सबसे पहले वी हैव टू, जैसा कि हमने assumptions में कहा था कि वी हैव टू फॉलो द अबव प्रिंसिपल. तो अबव प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले फिलिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. तो जिसकी एनर्जी सबसे कम हो उस एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल्ड होगी. सो 4s जो है दिस हैव लोवेस्ट एनर्जी. ठीक है. सो 4s जो है ये पहले फिलअप होगा. तो 4s यहाँ से 4s एटॉमिक ऑर्बिटल आता है, और यहाँ से लीगन ये एम्प्टी है, तो यहाँ से लीगन इलेक्ट्रॉन से इसको हम फिलअप करते हैं, और ये मेरे पास A1G. सो A1G मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे पास बन जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा. फिर इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ से 4p यानी T1u एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएंगे और इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यहाँ से लीगन इलेक्ट्रॉन से ये जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इनको 3 लीगन इलेक्ट्रॉन से फिलअप कर देते हैं। और इसी तरह हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रिस्पांस में हमारे पास एक एंटी बॉन्डिंग यानी हर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिस्पांस में एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। लाइक दिस कि ये मेरे पास A1G मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो A1G स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। तो यहाँ से एंटी एक A1G स्टार एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा और यहाँ से लीगन इलेक्ट्रॉन्स अब है ही नहीं तो ये एम्प्टी रहेगा। सो A1G स्टार दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी तरह T1 जो ये मेरे पास जो 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं इनके 3 जो है मेरे पास क्या होगी T1U स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका भी बनेगा। इसी तरह यहाँ से 2 EG यानी DW डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे और इनको हम जो है फिलअप करते हैं कहाँ से लीगन इलेक्ट्रॉन से फिलअप करते हैं। सो EG और इसके रिस्पांस पे एंटी बॉन्डिंग भी होगा यानी EG स्टार ये दिस इज EG स्टार और इसकी भी अपनी एक एनर्जी होगी। इसी तरह से मेरे पास ये सारे E1G 2Tg सारे खत्म हो जाएंगे। ये अब मेरे पास क्या है अब वी डोंट हैव नो मोर लीगन इलेक्ट्रॉन्स हियर बिकॉज ऑल दिस 6 pairs of ligan electrons fill up here. So now we have 3 T2G ऑर्बिटल्स और 3 T2G इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो ये मेरे पास अब ये जो रेड कलर में मुझे नजर आ रहा है ये क्या है T2G ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये सारे एक A1G और 3 T1U और 2 EG जो ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जबकि ये तीनों जो है ये तीनों क्या कहलाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जाहिर है इनकी एनर्जी कम है इनके एटॉमिक ऑर्बिटल से और इनकी एनर्जी ज्यादा है एटॉमिक ऑर्बिटल से तो इस वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के बराबर है। सो दैट्स व्हाई दीज आर द नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो इसी तरीके से हम किसी भी उसको जो है हम ड्रा कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 स्ट्रक्चर्स है COF6-3 और ये मेरे पास दूसरा लीगन है। यहाँ पे न्यूट्रल लीगन्स होते हैं और इसके साथ फ्लोराइड आयन है जो कि एनियोनिक लीगन्स है। अब क्या होगा यहाँ मैं कोबाल्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल की सूरत पे यहाँ रखूंगा और 6 फ्लोराइड आयंस के इलेक्ट्रॉन्स जो है हम यहाँ रख देते हैं और इसी तरह फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। इसी तरह यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बार सेम और यहाँ पे 6 अमोनिया लीगन इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 पेयर्स ऑफ अमोनिया इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख देते हैं। अब फर्क ये होगा कि वन ऑफ देम इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड द अदर वन इज एज अ वीक फील्ड लिगेंड। The one will undergo strong splitting and the other will undergo weak splitting। अब क्या होगा एक सूरत में पेयर अप होगी दूसरे सूरत में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली फिर जो है फिलअप ऑफ ऑर्बिटल्स हम कर सकते हैं। ठीक है सो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर असाइनमेंट ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर COF6 और CONH3 6। इस कॉम्प्लेक्स के लिए दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर आप ड्रा करें और देखें कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो कर रहे हैं और डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो कर रहे हैं और ये इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा और इस कॉम्प्लेक्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। दिस इज योर असाइनमेंट एंड यू प्लीज विल डू दिस बाय योर ओन। ठीक है सो ये आप लोगों ने करना है। नाउ आगे चलते हैं जी बिल्कुल। यूजिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल टू एक्सप्लेन व्हाई सम मॉलिक्यूल्स डोंट एग्जिस्ट। जी बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओटी थ्योरी का एक फायदा ये भी है कि इससे बॉन्ड ऑर्डर का हम अंदाजा लगा सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर से हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है अगर बॉन्ड ऑर्डर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2। इससे आपके पास अगर जीरो आंसर आता है, इसका मतलब ये कि ये मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये मतलब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड जीरो के बराबर है, मीन के बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। तो ये इमोटी मॉडल को ये हम इस मकसद के लिए भी यूज कर सकते हैं कि वाई सम मॉलिक्यूल्स डोंट एग्जिस्ट लाइक He2 हीलियम मॉलिक्यूल। तो हीलियम मॉलिक्यूल को He2 अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है, bonding molecular orbitals, atomic orbitals of one helium at one side, atomic orbital of another helium at another side, हम वैलेंस ऑर्बिटल्स रख देते हैं और इनको कंबाइन करेंगे हम इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब ड्रा करेंगे, फिर अगर हम इनका वो बनाएंगे number of electrons in bonding and number of electrons. So as such, we have the same number of electrons in bonding and anti-bonding molecular orbital. As a result, we will get a zero answer. We will have a bond order zero. So this will show that He2 don't exist. So इस एमओटी डायग्राम से या मॉडल से हम ये भी अंदाजा कर लगा सकते हैं कि आया ये मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट भी कर सकता है या नहीं कर सकते। So MOT models can also be used to explain why He2 molecule don't exist. Combining a pair of helium atoms with 1s2 electron configurations would produce a molecule with pair of electrons in both the bonding and the anti-bonding molecular orbitals. बिल्कुल, जब MOT diagram को क्या why He2 molecule doesn't exist, combining a pair of helium atoms, हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक 1s2, दूसरे का भी 1s2, तो वन He का 1s2, दूसरे He का 1s2, तो इसको इधर से इसको इधर से लाओ तो हमारे पास सिग्मा 1s2 और इसी तरह सिग्मा स्टार 1s2, वहां भी दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, यहाँ नीचे भी दो, क्योंकि एज अ होल चार इलेक्ट्रॉन्स बनते, सो दो इलेक्ट्रॉन नीचे दो ऊपर, सो 2 minus 2 divided by 2, 0 by 2 is equal to 0, तो 1 under 0 बन जाएगा। So as a result He2 doesn't exist. A pair of electron in both the bonding and the anti-bonding molecular orbital exist. दोनों में pair of electrons होगी, I mean की minus से 0 आएगा, thus the bond order becomes 0 and there would be nothing to hold the helium atoms together to form a molecule. तो इसका मतलब है कि दो helium आपस में hold नहीं करते. So this is one of the advantage of the molecular orbital model. There is certain limitations of the MOT. Molecular orbital theory is a very good tool in explaining many of the molecular properties, through it too has certain limitations. जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्योमेट्री का कोई या शेप का कोई जिक्र हमें नजर नहीं आया. So it doesn't give us any idea about the molecular geometry or shape of the molecules. Geometry of the molecules or shape of the molecules जो है MOT यानी molecular orbital theory explain नहीं करता. This is one of the limitation of the theory. अलबत्ता MOT diagram gave us information about the colors of the complexes and para or diamagnetic of the complexes and the bond orders of the complexes. So ये चीजें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं एक्सप्लेन करता. So that's why this one is limitations of the MOT diagrams. Thank you so much. So this is sufficient for today, and I think so